Hello everyone, I hope all you are doing well. So today I am gonna discuss a topic of multivibrator. So let's get started. So what is multivibrator? It is a multivibrator is an electronic circuit that generate square, rectangular, pulse waveform, and it is also called non-linear oscillator or function generator. Basically जो multivibrator होता है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उसका देखें तो it is a two-stage resistance coupled amplifier with positive feedback from the output of one amplifier to the input of other. तो दो स्टेजेस होंगी एम्पलीफायर की आरसी कपल्ड. आपने पढ़ा होगा आरसी कपल्ड एम्पलीफायर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में कि ट्रांजिस्टर होता है, उसका एक स्टेज होती है, तो डुअल स्टेज होगा आरसी कपल्ड एम्पलीफायर. और एक स्टेज का जो आउटपुट है वो फीडबैक के थ्रू दूसरे स्टेज का आउटपुट के साथ कैस्केडेड में होगा. और वो क्या करेगा, वो एक दूसरे को मतलब फीडबैक लूप में ऑपरेशन करेंगे ताकि एक ऑन हो एक ऑफ हो. जैसे भी करके जो आउटपुट होगा वो either it is a square, its output either will be either a square waveform, rectangular waveform or pulse waveform. Okay, so multivibrator जो होता है it is classified according to on the basis of that how much stable state it has. तीन अलग अलग तरीके के मल्टीवाइब्रेटर होते हैं. फर्स्ट वन इज बाइस्टेबल, अस्टेबल एंड मोनोस्टेबल. तो बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का आप नाम से समझ रहे होंगे. बाइस्टेबल मतलब दो स्टेबल, तो इट हैज टू स्टेबल स्टेट, 1 और 0. अस्टेबल में क्या होता है, स्टेबल ही नहीं है वो सर्किट, उसमें कोई स्टेबल स्टेट नहीं होगा और उसको फ्री ऑसिलेटिंग सर्किट भी बोलेंगे. और मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में होगा एक स्टेबल स्टेट होता है, एक क्वाजी स्टेबल स्टेट होता है. तो बेसिकली जो मल्टीवाइब्रेटर जो जैसे मैं बता रहा था, इट इज बेसिकली टू एम्पलीफाइड सर्किट अरेंज विद रीजेनरेटिव फीडबैक. रीजेनरेटिव फीडबैक मींस इट इज पॉजिटिव फीडबैक. आपको पता होगा नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, बार्केशियन क्राइटेरिया, कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे फीडबैक को. तो नेगेटिव फीडबैक में आपको पता है कि वो गेन उसका डिक्रीज होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है. ऑन द अदर हैंड पॉजिटिव फीडबैक आप मल्टीवाइब्रेटर यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं, और आपको पता है कि ऑसिलेटर में भी पॉजिटिव फीडबैक का यूज करते हैं. तो बेसिकली थ्री टाइप ऑफ मल्टीवाइब्रेटर जो मैंने आपको बताया. फर्स्ट वन इज अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर. तो अकॉर्डिंग टू इट्स हाउ मच ऑफ इट्स स्टेबल स्टेट इज, so it is accordingly it will give. So accordingly multivibrator is classified according to this tree. In this monostable and according to its classification of stable state, it is used in various applications like stable multivibrator used in oscillator, monostable multivibrator is used in timer. So it has one stable state and other is another state is known as quasi stable state. It is not a stable state, but it is in between of stable and unstable state. So and third one is bistable multivibrator. It has two stable state, 1 and 0, which is also known as flip flop. You can also so it is also known as flip flop. So first of all, what is this operation of stable multivibrator, how it works. So a stable multivibrator, as I have mentioned, that it has no stable state. With no external signal applied, the transistor alternately switches from cutoff to saturation at frequency determined by RC time constant, a coupled circuit. So there is a capacitor and there is a resistance. So accordingly, this time constant of this capacitor is very much important, play a very important role in this total circuit. So what will happen in stable multivibrator? There are two no stable state is there, because it will the output will toggle between 1 and 0 without any external input applied. So what we have in this circuit, this it consists of two cross coupled RC amplifier, as I told you at the first of lecture, that this is the RC coupled, two RC coupled amplifier is cascaded. This is one RC coupled amplifier and this is second RC coupled amplifier, RC,
and it is filled, it is with coupled with this transistor. So it is RC coupled amplifier, two RC coupled amplifier, and this its output is feedback to its input, and its output is feedback to this input. So it is giving it is a positive feedback. So what are the typical parameter that we have assumed? This two amplifying device cross coupled by a resistant, typically R2 equals to R3, these are equal, R1 equals to R4, and R2 is very greater than R1. We will see it why it will remain this R2 is greater than R1 because of this time constant, because time constant associated with R2 or C1. So what we have, there are two stable state. So what are the stable state? There are two stable state. So what we have, there's a power supply VCC over here, and these two transistors are there. So in first stable state, not stable state, actually it has two state. So in first state, what will happen, this VC1, this VC1 is low. So when it is low, when VC1 will low, VC1 will low when this Q1 will on saturation. So when you always want to find out that if transistor is in active region or saturation region, so you have to find out this VC. If this VC is low, then it means that the transistor is in saturation. So accordingly, there is a mathematical calculation over it, that you have to find out IB minimum. So IB minimum, IB divided by HFE. So in that way, we'll find if either this transistor is in saturation or in cutoff or in this active region. So for first stage, assume that VC1 is low. So VC1 is low, so it will coupled with VB2, Q2. So Q2, it has based input here. So when VC1 is small, then it will automatically what drives this Q2 in cutoff region, and on the same this VC1, this Q1 will approach it in saturation region. So it will in saturation it will take it as an on state. So what will happen, this will on and this will off. This is the one first stage. So why saturation has when we take transistor as in saturation, it will take as an we take it as an on state. So why is it so? Because in digital, when transistor is in saturation, then it will we will consider it as off on, and if it is in cutoff, then we will take it as off. So in that way, we are taking this transistor as an on and off. So in the similar way, on the second stage, when VC1 is high, so when it is high, then input to this VB2 will be high. तो ये इसका input जब high आएगा तो क्या होगा, इसका इनपुट हाई आएगा तो VC2 ऑटोमेटिकली ये कम होगा. VC2 कम होगा तो ये क्या करेगा, ये सैचुरेशन में ड्राइव करेगा, ये सैचुरेशन में ड्राइव करेगा, और ये जो VC2 कम होगा ये इसके साथ फीडबैक में है. Q1 क्या करेगा, ये Q1 ऑफ होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ से ये VC2 के वोल्टेज कम, इनपुट वोल्टेज कम है और VC1 ज्यादा है. तो VC1 अगर ज्यादा है तो कैसा होगा, आपको पता है करंट जो फ्लो होगा, करंट फ्लो कैसे होगा, करंट फ्लो होगा IC. ये जो इस पे जो सैचुरेशन करंट है वो कैसे डिपेंड करेगा कि करंट सैचुरेशन में है या एक्टिव रीजन का है. आपको पता है कि ये अगर यहाँ से सैचुरेशन करंट कोई आ रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, VCC माइनस VC1 डिवाइड बाय R1. सो अकॉर्डिंगली इफ दिस VC1 इज वेरी लार्ज, इसका मतलब कि IC क्या कम होगा. तो ये VC1 IC कम होगा, तो VC1 अगर ज्यादा होगा तो ये इसको ऑटोमेटिकली ये IC कम होगा. तो IC कम होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो है ये सैचुरेशन से कट ऑफ की तरफ मूव करेगा, और ये VC1 क्या करेगा, ये VC1 इसको प्रोवाइड करेगा जो फीडबैक है जो इनपुट में आ रहा है. तो ये फीडबैक इसको देगा कि ये सैचुरेशन में आए. तो इस तरीके से दो स्टेट होती है, ये दोनों स्टेट ये है, VC1 लो, पहले VC1 लो होगा, VC2 हाई होगा, Q1 ऑन सैचुरेशन और Q2 ऑफ होगा. तो इस तरीके से दोनों बारी बारी से ऑन और ऑफ होंगे. ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा. ये फीडबैक है इसके इनपुट में है, और ये फीडबैक इसका आउटपुट इसके इनपुट में है. एक बार जब इसका आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होगा, ये जब ज्यादा होगा तब कब ज्यादा होगा, ये तब ज्यादा होगा जब
ये जो है ये सैचुरेशन से कट ऑफ की तरफ जाएगा, और ये जो आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होगा, इनपुट के साथ इसका कैस्केडेड है, तो इसका मतलब ये फीडबैक है, तो ये जो है ये ऑटोमेटिकली ये सैचुरेशन में जाएगा, क्योंकि ये ऑन होके फिर ये सैचुरेशन में जाएगा। तो इस तरीके से दो स्टेट है। तो ये क्या करेगा, इट कंटिन्यूअसली ऑसिलेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो एक्चुअली सबसे स्टार्टिंग में होता कैसे है, when the circuit is first powered on, neither transistor is on, so both VB1 and VB2 rise. So let us see the actual operation, how it operates. So what will happen, as I told you that it has no stable state, no external input is applied in this circuit. तो सबसे पहले क्या होगा, सपोज करो ये VB1 VB2 है, तो ये जो VB1 VB2 ये राइज कैसे करेगा, ये R3 के थ्रू ये करंट, इसमें वोल्टेज डेवलप होगा, इसमें R2 के थ्रू होगा VB2 में। तो फॉर एग्जांपल सपोज करो कोई एक्सटर्नल इनपुट तो अप्लाई किया नहीं है, तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे होगा सर्किट, तो स्टार्ट ऐसे होगा कि ड्यू टू सम सर्किट इम्बैलेंस एंड ड्यू टू दिस मिसमैच इन दिस ट्रांजिस्टर, क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ा होगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में कि कोई जो दो ट्रांजिस्टर होता है वो कभी भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के नहीं होंगे, बीटा हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा बीटा में, तो उसके वजह से इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी। तो इसमें क्या, सपोज करो सर्किट इम्बैलेंस के वजह से Q1 टर्न ऑन हो जाता है, लेट अस सपोज दिस कंडीशन, लेट Q1 विल टर्न ऑन फॉर द फर्स्ट, सो फॉर एनालिसिस पर्पस वी एज्यूम Q1 कंडक्ट फर्स्ट एंड Q2 ऑफ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब Q1 टर्न ऑन होगा तो ये क्या होगा, ये C1 जो है ये फुल्ली चार्ज होगा, C1 इज फुल्ली चार्ज सिंस Q1 कंडक्ट एंड Q2 ऑफ। अब मैंने आपको बताया कैसे कंडक्ट होगा कैसे ऑफ होगा, क्योंकि ये जो है ये सैचुरेशन में होगा, ये सैचुरेशन में क्या करेगा, ये इसको टर्न ऑफ करेगा, और इसका जो इसकी वोल्टेज जो है ये कट ऑफ में है, तो इसकी वजह से ये मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ आएगा, क्यू आएगा VCC माइनस VC2। तो क्योंकि नेग्लिजिबल करंट पास होगा कट ऑफ से, तो नेग्लिजिबल करंट कैसे पास होगा, VCC माइनस VC2 डिवाइड बाय R4। तो VCC और VC2 का जो डिफरेंस है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, इसका मतलब VC2 भी VCC के बराबर हुआ। तो जब ये बराबर होगा तो ये भी क्या करेगा, ये इसके थ्रू ये ऑन करेगा, तो कुछ टाइम बाद ये कंप्लीटली ऑन हो जाएगा, कंप्लीटली ऑफ हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी हैव स्टेट 1। ओके, सो दिस इज हाउ दिस इज चार्जिंग, हाउ दिस कैपेसिटर विल चार्ज in through this that first stage, since Q1 conducts and Q2 offs, hence VC1 equals to VC1 जो होगा वो 0 वोल्ट होगा, एंड VC2 इज इक्वल्स टू VCC, जो मैं आपको बताया, ड्यू टू हायर वोल्टेज VC2 कैपेसिटर C2 विल चार्ज वाया R4। ये कैपेसिटर जो R4 के थ्रू होगा, लो रेजिस्टेंस पाथ बिटवीन R4 एंड R2। क्यों, मैंने आपको बताया था कि जो पहले हमने जो स्पेसिफिकेशन लिया था उसमें क्या लिया था हमने, R2 जो है वो ज्यादा बड़ा होगा R4 से, तो यू नो करंट ऑलवेज फॉलो लो रेजिस्टिव पाथ, सो इट विल यू नो through this path current will flow and ultimately this capacitor will charge. So and you know C1 which was a charge earlier cannot hold the charge for indefinite period because it depends on charging the time constant. So start discharging via R2, ये discharge करना start करेगा ये R2 के through, ठीक है। तो हाई रेजिस्टेंस पाथ बिकॉज R2 इज ग्रेटर देन R1, सो ये डिस्चार्ज करेगा। टाइम टेकन टू डिस्चार्ज आपको पता है जो टाइम कांस्टेंट लगेगा, तो टाइम कांस्टेंट जो ये डिस्चार्ज होगा इसका जो रेट होगा वो ज्यादा होगा कंपेरेटिवली किसके, जो चार्ज होने के, क्योंकि इसका जो R2 है वो ज्यादा है R4 से, तो ये डिस्चार्ज होने में ज्यादा टाइम लगाएगा देन दिस चार्ज। ओके, सो व्हेन C2 इज फुल्ली चार्ज्ड देन हाँ, जब ये C2 फुल्ली चार्ज हो जाएगा, जब ये C2 फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा, इसका जो लेफ्ट प्लेट है, ये लेफ्ट प्लेट क्या होगा, when left plate C2 will be minus VCC, क्योंकि ये प्लस VCC ये माइनस VCC ये माइनस VCC, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। तो ये Q1 क्या करेगा, ये Q1 अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, स्विच ऑफ स्टेटमेंट लाएगा, और ये C1 का लेफ्ट प्लेट जो होगा ये भी प्लस VCC, और ये इसको पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, तो ये ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टेट 2 में आ जाएगा। तो इस तरीके से बिना किसी एक्सटर्नल इनपुट के मदद से ये टॉगल होता रहेगा, सेम प्रोसेस। फिर से ये स्टेट 1 से स्टेट 2 होगा, जब VB2 reaches V on the circuit enter in state 1 and process repeat। तो इस तरीके से अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो है वो टॉगल होता है अपने ऑपरेशन के, और इसको हम फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर भी कहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके
इसका आउटपुट आएगा, क्योंकि कभी ये ट्रांजिस्टर ऑन है कभी ये ट्रांजिस्टर ऑन है, तो उस हिसाब से आपको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये फ्री रन कर रहा है विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इनपुट. ओके, so these are switching time and frequency for a stable multivibrator. So I will signing